Am I audible? Thank you. Very good morning, everyone. I know that these weekdays, when we do these kind of events, it becomes sometimes sluggish, sometimes very entertaining, and sometimes very exciting. So I want this audience to get a little excited for this session, because I'm going to bring about something special for you in terms of how we can actually help you take your business to the next level. See, there are people here who are trying to help MSMEs, because India is backed up by MSMEs. The kind of economy which is being run by MSMEs is huge. It's more than 45%, it's 48% or something like that. But I'm here with a purpose. I'm not here to really address you to sell some kind of a product or something. It is basically, I'm here to really help you, to really open up your minds, change your mindset, and really look into the future where you can actually take your businesses to the next level. So I've got a certain experience. For the last 27 years, I'm on this mission. I'm a business consultant, and Sandeepan is my friend. Thank you, Sandeepan, for this opportunity. I'm connected with SMB Connect for the last almost 7-8 years now, and I'm sure that today you're going to take away something from here, if not anything much, but then some ideas, some kind of concept, some kind of strategies which I would like to share with you. मैं अपनी इस स्पीच को या ये जो सेशन मैं करने जा रहा हूँ, ये मैं एक ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, because I'm a trainer. Because wherever I stand, I start training. This is something, and I start consulting, I start coaching. That's what is the inbuilt, persona I carry with myself. So here I am. I'm here to actually show you, or probably take you through a roadmap for a growth and profitability. Because when you intend to grow, you have to grow profitably. That is the whole idea. When we say profitability is that last income which you take home. That's where the whole purpose of business is. If you are not profitable, if you are not positive cash flow, then it becomes a struggle for the entrepreneurs. And entrepreneurs I respect a lot, because I'm myself an entrepreneur. I worked with industry for initial 3.5 years only, and then I started my own consulting journey. So here I am. The first thing I would like to share with you, that there is a myth in social hypnosis about entrepreneurship that risk is certain. हम कुछ भी काम करेंगे तो उसमें रिस्क होगा. अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, वर्किंग कैपिटल लाना है, टीम को हायर करना है, टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट करनी है, हर चीज में हमें रिस्क लगता है. और रिस्क जो है, ये हमें ऐसा लगता है कि ये तो सर्टन है. रिस्क तो अगर कुछ काम किया तो रिस्क तो होना ही होना है. और सक्सेस जो है वो अनसर्टन है. पता नहीं कामयाब होंगे नहीं होंगे, नॉट श्योर. बट एंटरप्रेन्योरशिप का एक माइंडसेट है कि वो कोशिश करता रहता है. एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी कोशिश करता रहता है, लेकिन उसको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको वो श्योर नहीं होता. वो हमेशा इस चीज को डिले करता है. तो जो सक्सेस हमें 10 साल में मिलनी चाहिए, वो हमें 20 साल में जाके मिलती है, तो हम इसको डिले करते हैं. सो देयर इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. आई एम एक्चुअली helping people to change this perception to success is certain when you take actions with known risks. And this is a statement I have been talking about this for many years, because I have the same story. Because आप जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, नोन रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क मीन्स कैलकुलेटेड रिस्क, जिसको हम कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं. आप देखिए, हम सुबह उठते हैं, शाम को सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, शाम को सोते हैं, काम करते हैं, लेकिन ये जो माइंडसेट है, ये डिटरमिन करता है कि मेरा लाइफस्टाइल क्या है. क्योंकि जो मेरा लाइफस्टाइल है वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन है मेरे माइंडसेट की. जो मैं सोचता हूं, जो मैं करता हूं, जो मैं कंसीव करता हूं, जो मैं मॉर्निंग में सोच के उठता हूं या उठ के जो सोचता हूं, वो मेरा माइंडसेट है. तो मैं ये चाहूंगा कि ये 3 स्लाइड्स जो है, ये अभी हमारा एक ग्राउंड बने आगे जो मैं बोलने वाला हूं. और मैंने संदीपन को प्रॉमिस किया कि मैं 30 मिनट्स में इसको क्लोज करूंगा. तो अंबिका, यू हैव अ टाइमर विद यू. 30 मिनट्स, प्लीज रेज द फ्लैग. आई विल स्टार्ट. Now friends, let me just start this whole thing with 10 questions which you may resonate with me on this. Because मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस, मेरे क्लाइंट्स के साथ मेरी एक्सपीरियंस है.
मैं ये देखता हूं कि कितना पोटेंशियल है लेकिन लोग उसको डिले कर देते हैं। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्लाइंट्स, कस्टमर्स, एमएसएमईज, स्पेशली एमएसएमईज, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन 70% ऑफ माय प्रोफेशनल वर्क आई हैव स्पेंट विद एमएसएमईज। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ डू आई रिटेन टैलेंट फॉर मैक्सिमम आरओआई? ये पहला सवाल होता है सबसे टॉप। अगर मैं इसकी सीक्वेंसिंग करूंगा, सबसे पहला सवाल होता है कि बॉस मेरे पास कुछ लोग हैं, कुछ टैलेंटेड है, कुछ नालायक हैं, लेकिन इनको मैं रोक के कैसे रोकूं, इनको मैं रिटेन कैसे करूं? हाउ डू आई अनलॉक पोटेंशियल ऑफ टैलेंटेड बट नॉन प्रोडक्टिव टीम्स? भाई टैलेंटेड तो है लेकिन यार काम नहीं करता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इट्स वेरी गुड, द गाय इज ग्रेट, ही नोज एवरीथिंग, इज केपेबल, but his commitment levels are very low and he is not productive. इसको कैसे हैंडल करें? How do I eliminate obsolete products and services from my list of products and services which are bleeding my company? Most of the entrepreneurs don't know it. अगर आप अपने products and services को देखेंगे तो बहुत सारे products ऐसे होंगे जो mix में होंगे लेकिन वो bleed कर रहे होंगे आपकी profitability को, लेकिन आपको पता नहीं। तो उसका भी एक scientific तरीका है। How do I grow sales by unlocking marketing potential? क्योंकि मार्केटिंग जब तक नहीं होगी तब तक सेल्स नहीं होगी। हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सब लोग मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज मार्केटिंग, ये जो हमारे इंडिया में सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये कर्स है। इसको मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट करना चाहिए। सारे ऑर्गेनाइजेशंस को मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, डिपार्टमेंट का नाम ही मैं मार्केटिंग को अलग कर देता हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट और फिर सेल्स, बिकॉज सेल्स कैन नॉट हैपन विदाउट मार्केटिंग। बिकॉज हमें एंटरप्रेन्योर को एमएसएमई में क्या लगता है कि मैं अगर किसी कस्टमर से मिलता हूं, वो क्लाइंट मैं लाता हूं, वो बस पूरा दिन जो है वो उसी मन स्थिति में रहता है कि ये मेरा क्लाइंट है, ये मैं लेके आया, तो उससे बाहर निकलना। हाउ डू आई ग्रो बिजनेस प्रॉफिटेबली? हाउ डू आई डिसएंगेज विद डेली ऑपरेशंस? हाउ डू आई हैंड ओवर सक्सेशन टू माय सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर विद ग्रेस? यहाँ पे बहुत सारे हमारे सीनियर बिजनेसमैन भी बैठे हुए हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को कैसे आगे देना है विद ग्रेस। देते हैं, ग्रेस से नहीं देते, पकड़ाते हैं, सक्सेशन प्लानिंग नहीं करते हैं प्रॉपर्ली साइंटिफिकली। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस को, करीब 50 ऑड फैमिली बिजनेसेस को, राइट फ्रॉम राठी स्टील्स टू अदर पीपल, आई हैव कोच्ड देम, यू नो, विद माय ओन जर्नी। बिजनेस मॉडल आपका एक्सपायर हुआ है, आउटडेट हुआ है, आपका रेलेवेंट कस्टमर प्रोफाइल नहीं है, आपने उसको कभी चेंज नहीं किया, अपने कस्टमर को कभी आपने दोबारा से जाके देखा नहीं, उसकी नीड्स को नहीं समझा, और वो जो 10 साल पहले था आप उसी ट्रेडिशनल तरीके से उसके साथ काम करना चाहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे खरीदे। आई एम सॉरी, ही विल नॉट। हाउ डू आई चेंज माय माइंडसेट एंड मैच्योरिटी व्हिच आई नो आई कैन मेक मी वेल्दी? माइंडसेट को कैसे ठीक करें? बहुत सारे लोगों की हैबिट हो जाती है, एंटरप्रेन्योर्स की हैबिट हो जाती है, वो माइंडसेट चेंज नहीं करते हैं कि जो करना है बस उसी के ऊपर पकड़े रहना है, उसको चेंज नहीं करना है। दे डोंट ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स। तो जब तक आप पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएंगे तो आपकी बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी। दैट इज पीरियड, दैट इज ऑल, यू नो, दैट्स वो एक ऐसी चीज है कि जो कोई चेंज नहीं कर सकता। हाउ डू आई हैव टू मूव फ्रॉम माइक्रो टू लार्ज? अब देखिए, जब हम MSME बोलते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो मीन्स 5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर, मीडियम मीन्स 50 करोड़ तक का टर्नओवर, और जो स्मॉल इज 50 करोड़ तक का टर्नओवर, और जब मैं मीडियम स्केल की बात करता हूं तो 250 करोड़ की टर्नओवर की बात होती है। ये नए एक्ट में जो MSME एक्ट है, जो सर ने भी बताया, उसमें जो नया अभी रिसेंटली 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ है, उसमें इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई। सो आपकी 5 करोड़ तक की सेल अगर है, रेवेन्यू अगर है, टर्नओवर अगर है, तो आप माइक्रो में आते हैं। 50 तक की है तो आप स्मॉल में आते हैं, तो 250, 50 के ऊपर जाते हैं तो अब आप देखिए, जब मेरे क्लाइंट्स जो आज से 20 साल पहले 4 से 5 करोड़ में थे और आज वो 100 करोड़ कर रहे हैं, उनका माइंडसेट कैसे चेंज हुआ, वो पूरी जर्नी मैंने देखी। आई हैव सीन दैट जर्नी, बिकॉज उन्होंने कुछ अपने में बदलाव किया, तभी उनकी बिजनेस बदली। अदरवाइज उनका बिजनेस, और जो कुछ 20 साल पहले, 25 साल पहले मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, वो तो बंद भी हो गए, तो 10 साल पहले बंद हो गए, दुकान भी बंद हो गई। आइदर दे हैव चेंज्ड देयर बिजनेस और दे हैव शट देयर शॉप। सो इफ योर बिजनेस इज अनऑर्गेनाइज्ड, देखिए 3 ही कारण मैंने निकाले हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आज MSME में क्या है। 3 ही प्रॉब्लम्स हैं और कुछ नहीं है। 3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो अनऑर्गेनाइज्ड, दूसरा लॉस मेकिंग है। अब वो लॉस मेकिंग क्या है कि वो इतने तजुर्बेदार होते हैं, दे आर सो एक्सपीरियंस्ड दैट दे रोटेट द मनी एंड दे जस्ट फील दैट दे आर प्रॉफिटेबल। दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। 80% ऑफ देम आर नॉट
प्रॉफिटेबल। जब मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता हूं, मैं कहता हूं यू हैव टू बी प्रॉफिटेबल एवरी मंथ। इफ यू आर नॉट प्रॉफिटेबल एवरी मंथ, यू आर नॉट प्रॉफिटेबल। यू आर एडजस्टिंग योर स्टेटमेंट्स एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स एंड द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। आप एक्चुअली सीईओ को पैसे उसके लिए देते हो कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को ठीक करें। आप एक्चुअली प्रॉफिटेबल नहीं हो, आप सिर्फ अपने को अच्छा, कुछ जो प्रॉफिटेबल है भी वो अनऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि वो कैश में काम करते हैं, लाइफस्टाइल उससे चलाते हैं और दिखाते कुछ है, करते कुछ है। सो देयर इज आल्सो बिकॉज आई एम ए टीचर, आई विल टॉक टू यू लाइक दैट। प्रॉब्लम ये है कि मैं जब देखता हूं, जब मुझे बुलाया जाता है और मुझे बोला जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो मैं बोलता हूं भाई अगर पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है तो फिर तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अंदर क्या है। So, what is the solution? You have to learn, design and implement. पहले सीखना पड़ेगा। आपके पास 40 साल का, 20 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस है, does not mean that you know everything. You have to learn, then you have to design, then you have to implement frameworks, strategies and systems to become organized, profitable and scale. देखिए, scalability की बात सब करते हैं। Scale कैसे करेंगे? जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। और अगर ऑर्गेनाइज हैं और स्केल करना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल नहीं है तो स्केल नहीं कर सकते, यू विल मेक लॉसेस। आप कर रहे हैं दिखाने के लिए, सेल तो हो रही है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही, आपको प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नहीं पता, आपको मार्केट नहीं पता, तो बहुत सारे इश्यूज हैं, चाहे मैन्युफैक्चरर है चाहे नॉन मैन्युफैक्चरर है। सो मेरा आज का जो ये नेक्स्ट 10 मिनट हो गए, 20 मिनट में मैं सिर्फ आपके लिए कोई इंफॉर्मेशन, ये तो सब कुछ मिल जाएगी आपको। हियर आई वांट यू गाइस टू गो आउट with some transformation. That's my service to all of you. That's my request to all of you. Okay? So now I want you to respond that what do you want from these 10 things. देखिए, एक होती है want और एक होती है need. मुझे लगता है कि entrepreneur को अपनी needs को define करना चाहिए। wants तो बहुत, उसकी तो कोई हद नहीं है। आज मर्सिडीज है तो कल मेरे को, आज 50 लाख की मर्सिडीज तो कल मेरे को 1.5 करोड़ की ऑडी चाहिए, तो कोई उसका कोई अंत नहीं है। बट मेरी नीड क्या है, मेरी बिजनेस को जो सस्टेन करे उसकी नीड क्या है। इस 10 चीजों में से, जो कि मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये 10 पॉइंट्स, ये स्लाइड आज की नहीं बनाई है, 2014-15 में मैंने बनाई है। क्या क्या आपको चाहिए, मेरे को कोई भी आप एक रिस्पॉन्ड करें, एक चीज बताएं, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस फॉर 2024? सर, फ्रॉम दिस टेबल, एनीवन? यस सर, ऑल ऑफ दिस। Sir, you are too greedy actually. Okay, sorry. So, see, point is that when we have 10 things in front of me in my platter, I need to know where do I start from. 2024 में मेरी प्रायोरिटी क्या है? यहां पे मैं बोलता हूं हम इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हम सब कुछ चाहते हैं। 2024 में, based on my problems today in my organization, what is that one thing, 2 things or maximum 3 things I want to turn around next year? You should be very clear about it. So I help you in that. That's one service I give. So whether you want to improve your cash flow, तो हम cash flow पे काम करेंगे। अगर आपको रेवेन्यू बढ़ाना है तो रेवेन्यू पे काम करना चाहिए। कंप्लायंसेस एंड स्टैंडर्ड्स का इशू है, नॉन कंप्लायंसेस हो रही है तो उस पर प्रायोरिटी कीजिए। तो इसमें से 1 2 3 निकालिए, इसकी फोटो खींचिए और 1 2 3 नेक्स्ट ईयर के लिए डिफाइन कर दीजिए। 3 टाइप की बिजनेसेस होती है, ये भी रिसर्च के बाद हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, नॉन, समझ नहीं आता, उसको मैंने 3 P में डाल दिया। पूरी बिजनेसेस एमएसएमई की इन 3 P में है। एक है प्रोडक्शन, एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक है प्लेटफॉर्म। जब मैं सर्विस की बात करता हूं, चाहे यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर, चाहे डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ट्रेनर्स हैं, मेरे जैसे कोचेस हैं, वो सब प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है और प्रोडक्शन है। ट्रेडिंग वाले भी प्रोडक्शन नहीं आते। So everybody who comes there, so this is what is this for. So what are the 10 reasons why this growth and profitability is not consistent? This is another list in that category, on that sequence I have created. Number 1, weak marketing strategies. पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मार्केटिंग की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, या वो बहुत कमजोर कड़ी है, मार्केटिंग के ऊपर ध्यान ही नहीं। तो पहला है वीक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, अनेबल टू एक्वायर मार्केट शेयर, पुअर कन्वर्शन रेट, पुअर कस्टमर एक्विजिशन रेट एंड लूजिंग कस्टमर्स। जो है उनको भी हाथ से छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग पे ध्यान ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा मैंने उस कस्टमर को ले, मेरे पास कस्टमर लिस्ट है तो मैं तो किंग हूं। भाई साहब वो नहीं रहेंगे आपके साथ, प्लीज। दूसरा, पुअर सेल्स परफॉर्मेंस, दैट इज ऑल्सो इंपैक्टिंग योर ग्रोथ। नंबर 3, पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग and negative cash flow, another problem.
high attrition, poor team management and poor productivity of teams. Fourth problem, high customer complaints, poor customer retention, poor customer perception. आपका सब कुछ ठीक है लेकिन कस्टमर ने मन बना लिया आपसे नहीं लूंगा, उसने परसीव कर लिया आपको कि आपकी सर्विस बहुत बेकार है, बोलेगा नहीं आपको, वो दूसरे को बोलेगा। परसेप्शन के ऊपर क्या काम करना है? मेरी कंपनी का नाम ही परसेप्शन मैनेजमेंट है क्योंकि ये मैंने 2006 में अपनी कंपनी का नाम परसेप्शन मैनेजमेंट रखा, इंटरफेस टेक्नोलॉजी से। पहले कंपनी का नाम था इंटरफेस टेक्नोलॉजी, मैंने बोला बहुत इंटरफेस हो गया, अभी परसेप्शन पे काम करते हैं। So this is very important. Absence of documented structures and systems leading to defects, quality problems, और because क्या है भाई, क्वालिटी का बंदा रखा मैं और कर रहे हैं ना क्वालिटी और देख रहे हैं। अरे भाई साहब, आपका पीपैप डॉक्यूमेंट है क्या? आपके पास एपीक्यूपी है क्या? आपके पास बेसिक कंट्रोल प्लान है क्या? है ही नहीं। है तो वो बनाया हुआ है क्योंकि ऑडिट करना था आईएसओ वालों ने, उसके बाद वो धूल चाटना। High operational cost impacting profitability, unprofessional ways of managing teams. This is different than the point number 4. हमारे पास हाई परफॉर्मेंस टीम है, बहुत बढ़िया लोग हैं, लेकिन हमारा जो उनके साथ कॉन्वर्सेशन है वही गड़बड़ है। We don't know how to talk to our professionals. We have to be professional to deal with the professional. It is not other way around. And ninth one is poor product costing and pricing strategy. ये मैंने देखा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने देखा कि अच्छा प्रोडक्ट मिक्स कितने आपके, अच्छा जी मेरे पास ना एसक्यू है ना 120 एसक्यू मेरे को, अच्छा एसक्यू की कॉस्टिंग कितनी है? हाँ जी कितनी है? उसका रॉ मटेरियल उसका सीओजीएस कटेगा सर वो नहीं ऐसे दस दे किसी को, क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी क्यों है किसी को? तो अपनी टीम को भी मत दिखाओ, तो फिर हो जाओ, मतलब फिर हो गया एट द एंड ऑफ द ईयर यू आर मेकिंग लॉसेस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई डू लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस विद माई टीम। वीक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सब कुछ ठीक है बट सप्लाई चेन गड़बड़ है, डिलेज हो रहे हैं, टाइम से जाता ही नहीं माल लास्ट मोमेंट पे। क्योंकि मैं जब लास्ट कंपनी में जॉब करता था तो वहां पे एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी थी, मैं असिस्टेंट मैनेजर था एसक्यू परचेज डिपार्टमेंट में। मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी और कभी नहीं करी इसलिए क्योंकि मेरा बॉस मेरे को बोलता था ये काम ऐसे ही होगा। मैं उसको बोलता था कि सप्लाई चेन डिफेक्ट तो मेरे को समझ में आता है, डिले का मेरे को समझ ही नहीं आता, डिले क्यों होता है? दैट मींस आवर सप्लाई चेन इज रॉन्ग। सो एनीवे these are the 10 problems which are there in the MSME. So you please pick your ones and start working on it. What I promise you, if you really get on to the journey with me, because SME and we have collaborated, we are trying to help MSMEs. मैंने संदीप उनको बहुत बार बोला कि events तो बहुत अच्छे हैं because you are bringing people here, but now what next? We have to really go to the next level. So how can I help? How can I serve? Please give me an opportunity. So 2x growth and positive cash flow in 90 to 100 days is my promise. We have turned around companies at our own pace, at our own style, with our own style. बहुत सारे consultants, coaches, I respect everybody, but we have our own style. So organize business, reinvent business model and upscale and grow. These are the 3 steps, nothing else. Revenue से आपका कॉस्ट जाके एबिटा निकलता है, एबिटा से आप इंटरेस्ट और टैक्सेस देते हैं, फिर नेट कम करते हैं। मेरा सिर्फ आपको ये जो इंडियन डॉलर है ये कमाना है। पर प्रॉब्लम पता क्या है? कोई भी एंटरप्रेन्योर, आप में से कितने एंटरप्रेन्योर सैलरी लेते हैं हर महीने? प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू टेक सैलरी, ए वैलिड सैलरी व्हिच यू डिजर्व फ्रॉम योर कंपनी? या हार्डली 10%। तो सर अपने को भी एम्प्लॉय कार्ड बनवाइए, आईडी कार्ड बनवाइए और आप अपने आप को सीईओ बोलिए, अपने आप को एमडी बोलिए, बट अपनी सैलरी कंपनी से उठाइए और जो आप डिजर्व करते हैं वो उठाइए, जो आपकी वैल्यू मार्केट में वो उठाइए। 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, सैलरी उठाइए, फिर कंपनी को देखिए क्या है। क्योंकि आपका टाइम, आपकी कंपनी अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं और उस कंपनी में आप अपना पूरा अपना 100% दे रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है, ठीक है आपको, बट एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द year you are in losses, you are not taking anything, you are not taking your wife or your kids to a vacation for the last 3 years, 4 years. Why are you doing this? इससे अच्छा तो जॉब कर लो। So this is what I try to be little brutally honest on this. So revenue, EBITDA, net income, यहाँ पे इसको पूरी गेम को खेलना है। So I will not get into this now. These are the 2 brands I own. One is my PMC International, which is Perception Management Consulting, and Academy for Business Leadership and Entrepreneurship का नाम मैंने एबल रखा हुआ है। So एबल कोचिंग है जहाँ पे हम 1-to-1 में, ये कुछ क्लाइंट्स हैं जो जिनके साथ हमने काम किया है
और ये मैंने एक बुक लिखी है आप सब लोगों के लिए, और मैं इसकी कॉपी मैं चेस्टा को बोलूंगा कि जितने भी आपके ईमेल्स हैं मैं इसकी एक PDF वर्जन इसके करीब देयर आर अबाउट 80 पेजेस, so I will definitely, this is a free gift from me, I will send it to all of you. All the emails which are there, you will get this copy. And what I have talked about in this book is that please from today or 1st of January, please become the CEO of your company. Please, my request to you. Please become CEO of it. अब देखिए इसमें CEO में E छोटा है, ये वो CEO नहीं है जिसको हम हायर करते हैं, ये छोटा E है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला CEO है जो एंटरप्राइजिंग है, जिसने इस बीज को बोया, जिसने इस कंपनी को खड़ा किया, जिसने इस कंपनी को बनाया, और फिर रोज गिरता है, रोज मरता है, रोज कुड़ता है, रोज परेशान होता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, किसी को निकाल देता है, किसी को रखता है, कभी फिर निकाल देता है, फिर निकाल देता है. This is not the way. You have to rise above this. And you have to become a success leader, you have to become a strategy enabler, you have to become a decision maker, you have to become an action taker, and you have to become a change agent for your own company. If you are not doing it, you are doing injustice to your business. Injustice to your business. And I give you a simple approach. ये presentation में सिर्फ STI approach अगर आपने ले लिया, आप CEO बन जाएंगे. आपको सिर्फ यहाँ पे रहना है, नीचे आना ही नहीं है. आपको नीचे खींचेंगे लोग, आजो भाई ये भी करो सर, ये भी करके दे दो सर, कॉस्टिंग भी करके दे दो, अरे सर नहीं करनी मेरे को, मैं यहाँ पे रहूंगा. Why my job is to create another factory, another office, another global जाना है, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को स्ट्रैटेजीज बनानी है, मेरे को विजन आगे लेके जाना है इस कंपनी को. आज मेरे पास 50 लोग हैं, मेरे को 100 लोगों की टीम खड़ी करनी है. मेरा काम वहां पे है. टैक्टिक्स में 20% हो सकता है, बट यहाँ पे 0 चाहिए. So it should be 80-20-0 if you are not ready. If you are only 20, 80, 20, 30 and 50 in implementation, then you are a manager, you are not a leader. So you want to be a leader or a manager, but you started as a leader, but you have become a manager. So as a CEO, what you have to do? You have to capture value from the market, कि मार्केट को क्या चाहिए, मेरा टारगेट कस्टमर कौन है. यहाँ पे हमारे पास एयरटेल वाले थे, हमारे पास Microsoft said, great presentation, both guys have really applaud. But you see, the core of the business is capturing value, creating that value and delivering that value. बड़ा सिंपल सा काम है. मुझे लगा कि मुझे यहाँ वैल्यू मिलेगी, तो मैं उनके साथ कल गाड़ी में आया, क्योंकि मुझे ये वैल्यू दिखती है. Because I have to capture this value here, I will create something for you and deliver it to you. If you are okay, if you are happy and you think that Manoj ji 3 महीने में मेरा cash flow सुधर गया, तो who will be the happiest person on the planet? I myself, right? So if I am not able to do it, तो मैं ये बोलूँगा कि सर मैं आपके साथ लगा रहूँगा, चलिए 3 महीने में नहीं तो 6 महीने में ठीक करते, लेकिन आपकी कमिटमेंट बराबर की चाहिए. So sir, this is the slide which I designed in 2011. मैं हेल्थ केयर के साथ काम कर रहा था. मेरी एक बुक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पब्लिश की, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. इट इज कॉल्ड एज क्वालिटी अश्योरेंस इन पब्लिक हेल्थ केयर. तो मैं एक बार झारखंड में था, वहां पे मैंने एक दिन दिमाग में आया कि यार इतना अनऑर्गेनाइज हेल्थ केयर सेक्टर है हमारा, इसके लिए प्रेजेंटेशन को कैसे मैं लोगों को समझाऊं, को समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत दुखी हो चुका था. तो मैंने ये बनाया सर, और ये मैं आप सबको दिखाता हूं तब से, कि ये है हमारी MSME की हालत. एक कंपनी जिसके लोग और जिसकी पॉलिसीज और जिसकी स्ट्रैटेजी चारों साइड घूमती है. इट्स अ टोटली कंफ्यूज्ड मैटर ऑल टुगेदर, राइट? सो व्हाट वी नीड टू डू, प्लीज टेक दिस फ्रॉम मी टुडे, दैट 2024 यू हैव टू बी लाइक दिस. डू यू फील सम वैल्यू इन दिस? देखिए कॉन्सेप्ट लेवल पे बहुत प्रेजेंटेशन होती है, स्लाइड होती है, बट इससे आप क्या सीखते हैं, क्या लेके जाते हैं, वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है. क्योंकि जब आप वहां से अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज, एक चीज को आपने सिस्टमैटिकली आपने लगा दिया, सिस्टमैटिकली कर लिया, और ऊपर वाले को बोला कि भाई मेरे को इतनी सद्बुद्धि दे दो कि मैं इसको स्ट्रीमलाइन कर दूं अपनी बिजनेस को, तो सर फिर आप कोई नहीं रोक सकता. अगर आपका इस साल का लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ था, आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप 2x का टर्नओवर का टारगेट लीजिए, उसके हिसाब से अपना एनुअल ऑपरेटिंग प्लान बनाइए, AOP बनाइए, आप देखिए आप अचीव करते कि नहीं करते. You will fall short of 10-20%, not more than that. 80% you will achieve, but it will be at least
if not 100%, but maybe 150, not 200%, but 150% आप पिछले साल से ज़्यादा आगे जाएंगे. That's for sure. So I have got three slides and I will close my presentation. लीप लेगेसी फ्रेमवर्क है, डीएनए, और ये जो 3 चीजें मैंने बताई कि पहले ऑर्गेनाइज करो, बिजनेस मॉडल को रीइन्वेंट करो और फिर स्केल करो, तभी आप ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे. तो मेरा ये लीप है, इसको मैं लीप बोलता हूं. लीप मींस यू हैव टू लीप फॉरवर्ड. तो मेरा एक फ्रेमवर्क है, मैंने जो डिजाइन किया अपने एक्सपीरियंस से, वो है कि सबसे पहले आपको इस क्वाड्रेंट में लीड और लेवरेज करना है. आपको लीड करना है पहले बिजनेस, पहले सीईओ बनना है. फिर जो आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं, आप वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को साइड पर रखिए, वो डेलीगेट कर दीजिए सारे. जो स्ट्रेंथ्स हैं आपकी, उन स्ट्रेंथ्स को आप लेवरेज कीजिए. अब बताइए आज से कि मेरे पास क्या है, मैं अगले साल उसको करूंगा. फिर एजुकेट एंड एम्पावर, अपनी टीम को एजुकेट एंड एम्पावर करें. फिर अपने सिस्टम्स को ऑटोमेट और एक्सेलरेट करें, और फिर परफॉर्म और फिर प्रॉफिट्स को आप अचीव करें. सो दिस आर द 4 थिंग्स. सो आप इसे देखेंगे, देयर आर 20 एलिमेंट्स इन दिस. इसकी पूरा एक प्रोसेस है जो करने का, तो वो मैं नॉर्मली लोगों को सिखाता हूं. और ये डीएनए है, जिसको मैं बोलता हूं कि डीएनए मींस बिजनेस मॉडल जो आपका है वो आपका डीएनए है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? जो आपका बिजनेस मॉडल है, जो भी आपने आइडिया लिया, जो जैसे हमारे संदीपन साहब है, ये एक मार्कॉम कंपनी चलाते हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंपनी चलाते हैं. तो अगर आज संदीपन सर मॉर्निंग में ऑफिस में नहीं आते 9 बजे 9:30 बजे, तो उनकी टीम वेट करेगी कि नहीं करेगी? ये डेलीगेट कर सकते हैं सब कुछ to Ambika and to everyone because he has got a great team. But ये जो डीएनए है, जो बीज बोया है, ये जो हमारे अंदर भी एक डीएनए जिससे हम यूनिक बनते हैं, हमारी पर्सनैलिटी यूनिक है, हमारा नेचर यूनिक है, ये हमारी कंपनी में यूनिकनेस लाता है. दैट इज व्हाई डोंट कॉम्पीट विद एनीबडी, बिकम कॉम्पिटिशन. दैट इज द पावर यू हैव. बिकॉज आप अकेले वो इकलौते इंसान हैं एज एन एंटरप्रेन्योर जिसमें वो अपना डीएनए है. वो कोई अलग नहीं, आपने कोई जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करी है. जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने लिए करनी है. तो मैं ये बोलता हूं कि आपको पहले अपना बिजनेस मॉडल रीडिजाइन करना है, उसमें फिर न्यूएंसेस डालनी है, स्ट्रैटेजी एंड सिस्टम्स, और फिर एक्शन लेना. और एक्शन क्या है? एक्शन इज नथिंग बट एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस. एक दिन जो चीजें हो रही हैं उसमें कोई गलती ना हो, सिस्टम को वैसे आपको ठीक करना है. और जो एमबीएस है, ये एक और फ्रेमवर्क है जिसमें मैं पहले मार्केटिंग को देता हूं कि पहले मार्केटिंग बताओ मेरे को क्या है. गिव मी अ प्रेजेंटेशन ऑन मार्केटिंग. हाउ आर यू एक्वायरिंग योर कस्टमर एंड हाउ यू आर रिटेनिंग अ रिलेशनशिप विद योर कस्टमर एंड हाउ यू आर रिटेनिंग योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स. बिकॉज नया कस्टमर लाने से पुराना कस्टमर को बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड देन डू बिजनेस डेवलपमेंट, जिसको हम प्रॉस्पेक्टिंग बोलते हैं. फिर सेल्स पे आइए. सेल्स ऐसे नहीं होगी. और जो आपके पास कस्टमर्स ऑलरेडी हैं, तो वो आपके सेल्स तो आपको दे ही रहे हैं, बट नए कस्टमर्स कैसे आ रहे हैं? एंड लेट मी जस्ट टेल यू दैट failing to plan for next 2024, because this is an opportunity for me to tell you that let's get prepared for 2024. Failing to plan is like planning to fail. So please be very serious about it, because if you don't plan next year, again you will be the same what you were there this year and last year. There will be no change. So these are the milestones which I normally take you through from your mindset to go to market, and I say that you have to take 3R approach, which is survive करना है कि thrive करना है. अगर survive और struggle करना है तो फिर तो वहीं रहिए, और अगर thrive करना है, आगे बढ़ना है, तो revive कीजिए, reimagine कीजिए और अपने आप को reinvent कीजिए. उसके बगैर नहीं हो पाएगा. और यहाँ पे छोड़ रहा हूँ सर, ये मेरी बुक का ये मेरा सेंटर पॉइंट है मेरी बुक का, जिसमें मैंने 5 लेवल्स ऑफ मैच्योरिटी लिखी है. क्योंकि बिजनेस में सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी मैच्योरिटी क्या है और आपकी बिजनेस की मैच्योरिटी क्या है, दोनों को तालमेल होना चाहिए. अगर आपकी बिजनेस क्योटिक है तो आप स्ट्रगल करेंगे, जो मैंने अनऑर्गेनाइज दिखाया. ये दोनों का रिलेशनशिप है, आपका और आपकी बिजनेस का रिलेशनशिप है. अगर आप क्योटिक कंपनी है, मॉर्निंग में विजिटर आता है, उसके पास विजिटर रजिस्टर नहीं, मैं तो वहां से शुरू करता हूं, गेट इन गेट आउट. अगर आपका पूरा प्रोसेस नहीं है तो आप स्ट्रगल करेंगे. आप अगर रिएक्ट करते हैं हर बात पे, हर एम्प्लॉय पे, हर कस्टमर पे, हर सप्लायर पे, अगर आप रिएक्टिव नेचर के हैं तो, या आपकी बिजनेस रिएक्ट करती है, तो आप एक बिगिनर हैं. अगर करेक्टिव है तो ऑर्गेनाइज्ड है, अगर प्रोएक्टिव है तो अचीवर है. अगर आप इनोवेटिव बिजनेस है, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, कुछ नया कस्टमर बेस ला रहे हैं, कुछ नया मार्केट ढूंढ रहे हैं, तो आप एक लीडर हैं. तो आपको स्ट्रगलर से लीडर बनाने के लिए there is a process, there is a journey,
which I have, and I say that mindset, maturity and model को ठीक कीजिए, you will be there. And as Ambika already said that I have got this organized model and scale model, and I would love to serve you. I have got complete course, I have got everything. We have a special offer if you want to get on a 1 month engagement with me. SMB Connect and Vinod Pandita has signed an MOU between us that any one of you will give you from 25,000 for 1 month, I'll give you for 5,999. So we'll talk during the lunch. If you are interested, you can talk to me. I'll be more than happy to serve Chandigarh. Thank you very much.